ऑलराइट, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, ठीक है। चलो, सॉल्व हो गया सबका? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, ऑलराइट। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द सिल्वर इज has FCC structure, right? Silver has a FCC structure and their atomic radius is given, and it is given as 1.4 angstrom, है ना? 1.4 angstrom, and we have to find the Fermi energy. सबका आ गया है? Is there anyone who are not able to solve? देखो कैसे करोगे इसको, जिसका नहीं हुआ मैं उसको बता देता हूँ। एटॉमिक रेडियस इज गिवन है ना, फर्मी एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्मी एनर्जी 3D में आप क्या लिखते हो, h का स्क्वायर बाई 2m एंड 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 2/3, ठीक है। सो बेसिकली n, देखो यहाँ पर ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बस n ही है जो हमारा थोड़ा वेरिएबल बन सकता है ना। सो द स्मॉल n इज रिटन एज कैपिटल N बाई v, दैट इज अ नंबर ऑफ, ऑलराइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम एफसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ भी आएगा ना, जैसे मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा, दैट इज एफसीसी और बीसीसी और डायमंड, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा, देन यू हैव टू टेक द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, है ना। यू हैव टू टेक द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, दैट इज एन इफेक्टिव, एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम v. So if the volume is V, that is A cube, FCC में पता है इफेक्टिव वैल्यू कितनी होती है 4 and divided by the A cube. But how will you find the value of A? How will you find the value of A? हाँ, अरे बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो, आप लोग भी हो क्लास में। आर और ए का रिलेशन पता है ना एफसीसी का, क्या होता है? ठीक है ना, just use this value, put it here and find out the Fermi energy, and it comes out approximate 5.8 electron volt, ठीक है। Solve next question please, means other question. 2.976 into 10 power 23. हाँ, कितना आ रहा है? 4.976 into 10 power 23. या 23। सबने सॉल्व कर लिया है? एवरीवन हैज सॉल्व दैट? स्टूडेंट्स सबने सॉल्व कर लिया है? Those who have not solved, please solve it. Assuming the electron to be free, determine the total number of state below 5 electron volt. Total number of state below 5 electron volt. कैसे करेंगे? ये सर उसके नीचे का पूरा स्टेट निकालना ही है। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है, ये क्या गिवन है? व्हाट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? Yes, exactly. It is a Fermi energy. So use the relation directly and find out the value of capital N here. देखो ना, क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोग के, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोगों को फॉर्मूलेज आते हैं, बट दिस क्वेश्चन आर फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। h² by 2m 3 square n by v to the whole power 2/3. Just use this and find the value of capital N. That's it. Simple, very simple. Only calculation. All right. I'm writing up one more question here. Okay. Please. The answer is 5 point. Means that is a 5 into 10 to the power 23. 5 into 10 to the power 23. आ रहा है? 5 into 10 to the power 23, है ना। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। द क्वेश्चन इज, प्लीज राइट डाउन एवरीवन,
the wavelength associated with a moving electron. Basically, we have to find the wavelength, or you can also write like this: find the wavelength associated with free electron. Find the wavelength associated with a moving free electron or free electron having an energy equal to the Fermi energy. Having an energy equal to Fermi energy. Having an energy equal to Fermi energy, and obviously, if they're talking about the Fermi energy, then it obviously at 0 Kelvin, at absolute 0. At absolute 0 Kelvin और 0. ठीक है, बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, देखो कितना आ रहा है. What is the value of lambda coming? So we have to find lambda in feet, say in terms of A. Yeah, exactly. Yeah. So 2 into pi by 3 or 1 by 3. Basically, we have find out what? Lambda. Yeah, is the lambda is coming out 2 into Pi by 3 pi by 3 and to 1. 1 by 3, right? Please check out everyone. सबका यही आ रहा है? हाँ? In 3D, we have to find out in 3D. हाँ हाँ 3D की बात हो रही है. 3D लिख लो, ठीक है ना? थ्री डी केस की बात हो रही है. देखो सबका आ रहा है ये. एक्चुअली यहाँ से ना हम एक और कॉन्सेप्ट, मतलब यू कैन से देयर इज अ वन मोर रिलेशन वी कैन फाइंड आउट, दैट इज रिलेशन ऑफ फर्मी वेवलेंथ, है ना. फर्मी वेवलेंथ का भी एक एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है. सो प्लीज इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये भी पूछ ले. What should be the expression or what should be the value of Fermi wavelength? ठीक है ना. Obviously, if you are able to find out the Fermi energy, you can find out any other expression. Okay, so it's just part of that, but we have solved to make it specific. Okay, so these were 3 questions. Huh? Sir, but there are not getting this approach. Sorry, what are you saying? I'm not getting this approach. Then how can you approach this point? How we approach this question? All right. Please write down the expression for the Fermi energy. The Fermi energy is given as h cut square by 2m 3 pi square n to the power 2 by 3. है ना? So what should be the value of kf here? Fermi wave vector. That is h cut square kf square over 2m, and when you solve this, the value of kf comes out कितना आया था? 3 pi square n power 1 by 3 है ना. So बस ठीक है, wave vector आपका आ गया है ना. This is a wave vector. Fermi wave vector has been find out. You can easily find out the wavelength by the relation kf is equals to what? 2 pi by lambda f. Simple. ठीक है ना. So the lambda f will be 2 pi by kf. टू पाई बाई के एफ, है ना. वैल्यू रख दो 2 pi with the value of 3 pi square n to the power 1 by 3 and just make it. This is your answer. है ना. चलो. All right. So let's continue our discussion, and today I'm going to tell you some direct relation. एक्चुअली लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में हम लिख सकते हैं इसको. दैट
if basically I'm talking about the free electron theory, है ना, एक नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं. So the if dispersion relation, if for आप ऐसे लिख लो, if for non-relativistic free electron, non-relativistic if for non-relativistic free electron, the energy dispersion is written as h cat square k square by 2m. ये इस dispersion relation के लिए specific है ना? This was specific for this dispersion relation. So the Fermi energy is directly proportional to n to the power 2 by d, where d is a dimensionality. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, मुझे पता है, बट स्टिल राइट इट डाउन स्पेसिफिकली, क्योंकि इफ यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन ना, दिस शॉर्ट रिलेशन, देन इट कैन मींस सेव लॉट ऑफ टाइम इन एग्जाम, है ना. आप इसको डायरेक्ट यूज करते हो, दैट इज EF इज प्रोपोर्शनल टू n to the power 2 by d, एंड सिमिलरली द KF का रिलेशन क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू n to the power 1 by d. यही आएगा. हाँ, no. Sorry, what are you saying? Please say again. Dependency we are writing now, that is EF is proportional to n हाँ. not Yes, exactly, because this is the हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम फर्मी एनर्जी की बात कर रहे हैं ना. फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ आपके लिए, है ना. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिस डिस्पर्जन रिलेशन. ठीक है ना. अगर आप डिस्पर्जन रिलेशन चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, है ना, और फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट बदल सकता है. ठीक है ना भाई. नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए किसी अदर सिस्टम के जो भी हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात की थी, आप उसमें इसको नहीं यूज कर सकते, है ना. सो बेसिकली दिस इज ओनली इन योर सिलेबस, you have to focus on this. This is for non-relativistic free electron. This is the dispersion relation, and this is the your direct relation for the Fermi energy on the dependence on number density, and the wave vector on the dependence of number density. And similarly, we can also write one more expression for the average energy, and this average energy will comes out d upon d plus 2 टाइम्स EF. देखो वेरीफाई हो रहा है, d अपॉन d प्लस 2 EF हो रहा है ना भाई. वन फॉर द 3 डायमेंशन व्हाट द एवरेज एनर्जी यू गॉट, इट वाज 3/5. ठीक है ना. फॉर द 2 डायमेंशन इट इज 1/2, एंड फॉर द 1 डायमेंशन इट इज 1/3. ठीक है ना. सो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर ऑल 3 रिएक्शन. ये आपका काफी टाइम सेव कर सकता है. ठीक है ना. ठीक है. ऑलराइट, चलो थोड़ा और आगे बात करते हैं. नाउ वन मोर टॉपिक आई वांट टू इंट्रोड्यूस हियर, एंड बेसिकली दिस इज फ्रॉम क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. ओके, दिस इज नॉट फ्रॉम द सी क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हैज बीन ओवर. Quantum free electron theory has been over. Now I am discussing a little part from the classical free electron theory. So इसको आप नोट करके डाल देना. ठीक है ना. थोड़ा इस पे मतलब एक लॉ है, उसको हम डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है ना. सो एज वी सी दैट वी हैव फाइंड आउट द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू Ne स्क्वायर tau by m. This is the expression for the electrical conductivity, right? Electrical conductivity. And I'm telling you that if you talk about the expression for the drift velocity, all right, if you talk about the expression for the drift velocity in terms of you can say in terms of mean free path, or so what you can write. देखो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ देयर इज अ एवरेज कोलिजन टाइम. ठीक है ना. एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम can be written as mean free path and divided by the drift velocity. Can we write like this? If we talk about the tau average, mean free path divided by the drift velocity. किसी को इसमें प्रॉब्लम है भाई? अगर आप कॉन्सेप्ट को देखो, if this is the concept, all three
all these three parameters were coming exactly at the same time when the electron was started to colliding each other, है ना? याद है? मीन फ्री पाथ भी वहीं आया था, the distance between two successive collision. tau average भी वहीं पर आया था, the time between two successive collision, and obviously the electron velocity, that is a drift velocity. So we can write this expression, that is tau average is equals to mean free path and divided by the drift velocity. That is, I also told you that mean free path can be written in terms of lambda. ठीक है ना, ये lambda यहाँ पर ना mean free path है, wavelength नहीं है, ठीक है ना? This is the mean free path, इसको mention कर लेना, it's not a wavelength. mean free path, ठीक है ना? मैं सिग्मा से नहीं डिनोट कर रहा हूँ, कुछ बुक में सिग्मा से भी डिनोट होता है, बिकॉज सिग्मा हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ले लिया है ना. So I'm denoting by the lambda here. So mean free path divided by the drift velocity. All right. Now we have considered that this theory is a very much resemble with the kinetic theory of gases. मैंने आपको बताया था ना, इसको हमने बिल्कुल आइडेंटिकल माना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से. तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप, दैट इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हाट वाज आवर आरएमएस वेलोसिटी, दैट इज वी आरएमएस. ठीक है ना, जो हमारा वी आरएमएस होता है केटीजी में, वो इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर किसके, वीडी के. ठीक है ना, वहां भी गैस पार्टिकल की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वी आरएमएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ भी हमने उसी गैस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर किया है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन को गैस मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर किया है. सो वी कैन आल्सो राइट दैट Vd इज इक्वल्स टू Vrms. तो अगर हम बात करें व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द Vrms, द लैम्डा अपॉन अंडर रूट 3 kT/m या 3 RT/m. ठीक है ना, लिख सकते हैं. सो आप इसको ना देखो, यहां से दो रिलेशन जनरेट हो रहा है. वन इज tau एवरेज इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन Vrms. इसको आप ध्यान रखना, लैम्डा अपॉन Vrms. ठीक है ना. बट लुक एट देयर, यहां पर थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा प्ले है. Let a tau average, if you are guys able to see, the tau average is inversely proportional to what? Under root of t, है ना. tau average किसके प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट ऑफ t के. तो अगर हम इस tau average की वैल्यू इसमें रखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, if you put the value of tau average in the electrical conductivity, देखो ये क्या बन जाएगा, it will become sigma is equals to Ne square by m, put the value of tau here, so it will basically become lambda into root m upon root under 3 kBt. ठीक है ना. बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आप अगर यहाँ पे टेम्परेचर के डिपेंडेंस देखो कंडक्टिविटी के साथ में, if you see the relation of conductivity with the temperature, you will find out that the sigma is proportional to 1 over root t. Sigma is proportional to 1 over root t according to the classical free electron theory, right? But experimentally it was find out that this dependence of conductivity on the temperature is not 1 over root 2, instead of it is proportional to 1 by t. ये 1 by root t ही बनना होकर क्या था, 1 by t था. ठीक है ना. This expression is from the classical free electron theory, and this expression is found out experimentally. ठीक है ना. So obviously which is true, experimental value is true. ठीक है ना. The experimental things which we are finding out by the experiment, obviously this it's true, है ना. So now actually this is the correct relation of the conductivity with the temperature. So here one more law you can say, which we are going to discuss, and basically the foundation of that law is, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहूंगा उसके बारे में, कि ये कहा गया कि भाई चलो सबसे पहले मैं आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तब फिर आपको ना समझने में आसानी होगा. हाँ हमने जो एक्सप्रेशन दिया है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. हाँ बिल्कुल. thermal conductivity. Now let's first talk about the thermal conductivity, then you will guys able to understand the the law which we are going to discuss. Can anyone tell what is the thermal conductivity basically?
what basically it defines or tell us? क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? एनीवन? किसी को नहीं पता? देखो, थर्मल कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल पैरामीटर. It is a physical parameter that defines effectiveness of what? Conduction of heat. The effectiveness of conduction of heat in a metal. Effectiveness of heat conduction or conduction of heat in material. ठीक है ना, यही होता है. और if you want to means write down in a one liner, अगर आपको एक लाइन में किसी को एक्सप्लेन करना है तो you can also explain like that this is the ability of a material to transfer the heat or conduct the heat. ठीक है ना, अगर आपको एक लाइन में किसी को समझाना है you can also write like this, that ability of means you can ability of a material to transfer the heat or conduct the heat. Okay, ability of material to conduct the heat. Okay, and the expression for this thermal conductivity is given as, I'm not going in the derivation because while getting trapped in the derivation it will be the means wastage of time. Okay, हमें उसमें नहीं जाना है. I'm writing down the direct relation here. मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप उस पर फोकस करना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. So the sigma T, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने अभी फाइंड आउट की थी ना क्लासिकल इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, दैट इज डिनोटेड बाय द सिग्मा. और समटाइम्स सिग्मा और नीचे ई हो जाता है, दैट इज सिग्मा और नीचे ना ई कर देते हैं. सिग्मा दैट ई फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी इट इज रिटेड एज सिग्मा टी. ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गया एक्सप्रेशन में? ठीक है, सिग्मा टी, एंड इट इज डिनोटेड एज द एक्सप्रेशन इज n pi square kb square tau by 3m multiplied by temperature T. n pi square kb square tau by 3m into T. ये एक्सप्रेशन होता है, हमें इसमें डेरिवेशन के डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट इज वॉट, मीटर के -1 केल्विन -1. दिस इज अ यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है ना, तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं बेसिकली, आप देखना. देखो, वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इट कम्स आउट E square tau by m. ये आया था फ्रॉम द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. एंड फ्रॉम द thermal conductivity expression it was find out that sigma T is equals to n pi square kb square tau by 3m into T. ठीक है, where T is a temperature. Now देखो, स्टोरी ये है कि ये देखा गया कि भाई जो मतलब किसी भी मटेरियल में जो हीट का कंडक्शन होता है, जो हीट का फ्लो होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन से होता है. भाई इलेक्ट्रॉन ही हीट को फ्लो करा रहा है. ठीक है ना. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन से ये देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन ही है जो कि करंट को मूव करा रहा है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल रही है. ठीक है ना भाई. In the case of thermal conductivity, we observe that the electron is a main reason for which means the heat is flowing or heat is conducted into the material. And similarly, electron is the region. That's why the electric current has been produced and the conductivity has been arise in the metal. That means electron is a common factor. Electron एक common factor है. इसका मतलब ये सोचा गया कि देयर इज एनी कोरिलेशन, कोई ना कोई एक रिलेशन जरूर है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी को और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आपस में मिला रहा है. समझ रहे हो ना, देयर इज अ कोरिलेशन बाय व्हिच द थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर रिलेटेड.
And this relation was found out by Wiedemann French. There was a two scientists, Wiedemann and French, and they gave their law that is known as Wiedemann-French law. That's a very famous law in the material science. Wiedemann-French law, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, नेट गेट में नहीं आया हुआ है, अदर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना? And Wiedemann-French law state that Wiedemann-French law, and it states that the ratio of thermal conductivity to the electrical conductivity is given as sigma T by sigma, and दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना? n pi स्क्वायर kb स्क्वायर tau by 3m मल्टीप्लाई बाय, देखो टेम्परेचर भी आएगा, मैं उसको लास्ट में लिख दूंगा, m अपॉन ne स्क्वायर tau एंड मल्टीप्लाई द टेम्परेचर T, ठीक है ना? m से m कैंसिल, स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल, tau से tau कैंसिल, है ना? So the ratio is comes out, मैं यहाँ लिख देता हूँ, the ratio comes out sigma T over sigma is equals to pi square by 3, ठीक है ना? Kb, that's a Boltzmann constant, by E whole square and multiply by T. This is a number, pi square by 3, Kb upon E whole square, this is a number. Can you even tell what is this number known as? इस नंबर को क्या कहते हैं? Yeah, exactly, good. This number is known as the Lorentz number, ठीक है ना? इसको Lorentz number बोला जाता है. This function that is sigma E. what? हाँ सर सिग्मा ई कर लो. Yeah, electrical conductivity basically sigma E, ठीक है ना? So it's a Lorentz number, that is a pi square by 3 and kb by E whole square. And this number is 2.45 into 10 to the power minus 8. 2.45 into 10 to the power minus 8, and the unit is, I guess, watt ohm Kelvin minus 2. Yeah, watt ohm Kelvin minus 2. This is known as Lorentz number. Okay, the L is Lorentz number. Lorentz number. ठीक है ना? तो अगर आप अब इसको देखो तो आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपका बन रहा है ना, सिग्मा T अपॉन सिग्मा E इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना? दिस इज नोन एज द वीडमैन-फ्रेंच लॉ. इसी को बोलते हैं क्या? वीडमैन-फ्रेंच लॉ. आप इसको ध्यान रखना, ठीक है ना? आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, ये 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन है, that what should be the ratio of thermal conductivity to the electrical conductivity. Whether it, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, गेट एग्जाम्स में से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, that the ratio of thermal conductivity to the electrical conductivity will depend on temperature as is linear with the temperature or power 2, power 3 and so on, ठीक है ना? तो प्लीज remember this expression, okay? इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान रखना, that is the ratio of thermal conductivity to the electrical conductivity is proportional to temperature, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लॉरेंज नंबर है ना, लॉरेंज नंबर तो एक तरह से कांस्टेंट हुआ, बट ठीक है ना? तो बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज ट्रू फॉर द मटेरियल्स. और मेटल्स के लिए ट्रू है ना, मेटल्स के लिए ये रिलेशन ट्रू है, ये वीडमैन और फ्रेंच का लॉ जो है ना, ये ट्रू है मेटल के लिए, है ना? प्लीज को ध्यान रखना, लॉरेंज नंबर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? आप इस टर्म को मतलब पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते कि सर हम सिर्फ रिलेशन ही देखते जाएंगे, आपको ये पूरा पता होना चाहिए. दिस नंबर इज नोन एज अ लॉरेंज नंबर, ठीक है ना? कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, हर एक चीज पूछी जा सकती है, मतलब कुछ भी चीज पूछी जा सकती है. ऑलराइट,
So this was a discussion. There's a one more topic has been remained, that is a variation of resistivity with the temperature, but we will do in the next class. ठीक है ना, हम इसको next class में करेंगे. And just वही एक topic बचा है, the resistivity and conductivity variation with the temperature. हमें 2-3 plot देखना होगा resistivity का temperature के साथ में, and the chapter will be over. And after that we will start the superconductivity, right? अच्छा, एक topic इसमें और है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ. There's a one more topic, that is Hall effect. हॉल इफेक्ट इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. मैं उसको अभी यहाँ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना. उसका रीजन ये है कि अच्छा, आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है क्या? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है. अच्छा देखो, ये जो है डिसाइड हुआ है ना कि चूंकि जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो उनका भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ है, ठीक है. तो एनालॉग जैसे जी हॉल इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मेटल के लिए भी है और सेमीकंडक्टर के लिए भी है. बट इन रिसेंट फ्यू ईयर्स, पिछले 2-3 सालों में देखा गया है इन डिफरेंट एग्जाम्स, क्वेश्चन जो है ना वो मेटल से ज्यादा नहीं आ रहा है. मतलब मेटल की जो थ्योरी है ना हॉल इफेक्ट की, उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहा है. बेसिकली दे आर आस्किंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रॉन और होल्स, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, उनकी वजह से जो हॉल इफेक्ट का एक होता है, इसको क्वांटम हॉल इफेक्ट बोलते हैं ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो ये डिसाइड हुआ है कि हॉल इफेक्ट आपको ना जयसर कराएंगे, क्योंकि जयसर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं ना. तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड वगैरह का कॉन्सेप्ट वो यूज करते हैं ना, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड वगैरह का. तो हॉल इफेक्ट का ना एक बार वो कंप्लीट करा देंगे यहाँ ऑफलाइन बैच में, देन आपका हो जाएगा, ठीक है ना. उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो. हॉल इफेक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है, हॉल इफेक्ट आपका होगा. और एक और टॉपिक है, अभी तक जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, उसमें 2 टॉपिक टेक्निकली अभी लेफ्ट है. मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ, ठीक है ना. आप इसको, मैं एक्चुअली मुझे याद तो है, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपका अभी 2 टॉपिक यहाँ पर ना बचा हुआ है. एक है ग्राफीन का डिस्कशन, ये मैं करूंगा, ये हम लोग करेंगे. बेसिकली दिस विल टेक अ 2 क्लास एटलीस्ट. एक ग्राफीन का डिस्कशन हमें करना है और एक हॉल इफेक्ट का डिस्कशन हमें करना है, ठीक है ना. हॉल इफेक्ट का डिस्कशन हमें करना है. अच्छा, एक चीज और आप में रह गया था, वो मेरे ध्यान से उतर गया था. जो हमने मिलर इंडिसेस डिस्कस किया था ना क्रिस्टलोग्राफी में, मुझे अभी एक बंदे ने मुझे याद दिलाया. मिलर इंडिसेस का जो हमने डिस्कशन किया था, डायरेक्शन ऑफ यू कैन से प्लेन्स का डिस्कशन किया था ना, प्लेन्स का हमने डिस्कशन किया था. बट वहां पर एक डिस्कशन और छोटा सा डिस्कशन है, मतलब बेसिकली इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स, बट स्टिल देयर इज अ टॉपिक रिमेन. यू कैन डायरेक्शन प्लेन, यू कैन ऑल्सो राइट द डायरेक्शनल प्लेन, ऐसा आप लिख सकते हो. हाँ हाँ, आप बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शनल प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. बेसिकली ये 3 टॉपिक है ना जो अभी आपके छूटे हुए हैं, ठीक है. तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, और डायरेक्शनल प्लेन, ग्राफीन और हॉल इफेक्ट, ठीक है ना. ये जैसर आपको कराएंगे, देखते हैं. जैसर नहीं अगर कराएंगे तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है. उसके लिए आप चिंता मत करो. एक ग्राफीन का एक स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ठीक है ना. उसको हमें डिस्कस करना है. डायरेक्शनल प्लेन का है, ठीक है ना. तो इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हो दैट दिस इज अ स्मॉल टॉपिक, नॉट अ बिग टॉपिक. ये तीनों मिला के हार्डली जो आपकी क्लास लेंगे ना, वो 3 क्लास लेंगे, 4 क्लास ले लेंगे, ठीक है ना. ओनली 4 क्लास इट विल टेक. डायरेक्शनल प्लेन, ग्राफीन और हॉल इफेक्ट, 4 क्लास में आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है ना. सो दीस 3 टॉपिक रिमेन्स. एक छोटा सा टॉपिक है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. ओके, ऑलराइट. सो लेट्स मीट यू. यस. Sir, actually, I have an idea. Hmm. So, thermal conductivity sigma E, every particle is proportional to T. Hmm. And electrical conductivity sigma E is proportional to 1/2. So, how the ratio is coming proportional to T? Sorry, how? How is the ratio of sigma T and sigma E is coming proportional to T? क्यों क्यों नहीं आ रहा है भाई? एक में जो proportional to T है ना, sigma T है. सिग्मा टी प्रोपोर्शनल टू टी है. And sigma E is proportional to 1/2. सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यू आर सेइंग. 1/2. सर देखिए, मैंने आपको अभी बताया ना, वो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से वो आया था, और एक्सपेरिमेंटली आपको ये मिला है. दिस इज एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यू, दैट वाज द थ्योरेटिकल वैल्यू, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. बात समझने की कोशिश करो. द टॉपिक का नाम ही है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. So that the relation which we have shown here, that is a sigma E is proportional to 1 upon under root T,
भाई वहां पर एक एजम्पशन है ना, एजम्पशन ये है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ना एक गैस की तरह कंसीडर कर लिया है। इन रूडे एंड लॉरेंज मॉडल, जिसको आप रूड मॉडल बोलते हो, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है, बेसिक एजम्पशन ही यही है, दैट दे हैव ट्रीटेड द इलेक्ट्रॉन एज अ गैस, एज अ आइडियल गैस। तो भाई आइडियल गैस की इक्वेशन उन्होंने लगा दी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, एक्चुअल में कुछ और चीजें हैं। एक्चुअल में ये होता है, दैट्स द प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल थिंग, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअल, यही मैंने आपको वहां बताया था ना कि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, दैट इज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। और आप यहां से देखो सिग्मा की वैल्यू क्या है, द सिग्मा ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस इज एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना, दैट्स अ क्लासिकल वैल्यू, दैट्स अ क्लासिकल थ्योरी, ठीक है ना, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। ऑलराइट, ओके ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। यस, हाँ हाँ, हमारा भी देखो बैंड थ्योरी बचा है, सुपर कंडक्टिविटी बचा है, मैग्नेटिज्म बचा है, और क्रिस्टल डिफेक्ट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट हम देखेंगे, ठीक है ना। हम सुपर कंडक्टिविटी करेंगे पहले, फिर हम मैग्नेटिज्म करेंगे, फिर हम क्रिस्टल डिफेक्ट करेंगे, और सबसे लास्ट में हम करेंगे बैंड थ्योरी, आराम से। लेंदी टॉपिक है इसलिए हम उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। सॉरी क्या कह रहे हो आप? नहीं, सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर का जो आपका टॉपिक है वो जय सर आपको पढ़ाएंगे, मैंने कहा ना, वो क्लास आपकी जय सर लेंगे, सेमीकंडक्टर की क्लास आपकी जय सर लेंगे। और उसको छोड़ के सुपर कंडक्टर में, सुपर कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म, क्रिस्टल डिफेक्ट और बैंड थ्योरी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बार आप प्लीज रिपीट कर दोगे, आप कहाँ कंफ्यूज हो? मैंने कहा कि जो सेमीकंडक्टर है वो जैसे हाँ, वो सॉलिड स्टेट के बाद पढ़ाएंगे या कब पढ़ाएंगे, मतलब बेसिकली इधर अक्टूबर के अंदर अंदर ही आपका हो जाएगा, और जो आपके सिलेबस में है ना वो वही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सिलेबस के बाहर का नहीं होगा वो, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है सेमीकंडक्टर का, कुछ चीजें हैं सिंपल। देखो जो बेसिक फंडामेंटल है ना वो आप लोगों को पता है क्लास 12th और ग्रेजुएशन से ही, कैसे रिवर्स बायस होता है, कैसे फॉरवर्ड बायस होता है, आप लोग एनालॉग पढ़ के आ रहे हो तो ये सब आपको पता है। कुछ चीज़ें उसमें हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं, एनर्जी गैप के साथ कैसा वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, डोपिंग के साथ कैसा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखो जो चीज़ें अभी है लेफ्ट वो मुझे पता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन मैं कह दूंगा कि आपकी सॉलिड की क्लास ओवर, मेरी तरफ से आप फ्री, उस दिन आप कहना कि सर ये टॉपिक अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। अभी जो चीज बचा हुआ है वो मुझे पता है, सो प्लीज उसके लिए आप बॉदर मत करो, सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ओके, मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.